Okay. So this particular chapter will be starting, which is the first chapter in ecology unit. That is your last unit for class 12. We'll be starting with the chapter number 13, organism and population. So basically two concepts are involved. One is your organism and other is your population. So in today's class, we will be finishing the half of the chapter, which is more or less is basically concept उतना नहीं है इसमें, but more or less it is definitions which you have to remember, definitions and examples. Okay, conceptual understanding, ये जो जितने भी topics आ रहे हैं ना, आपने यहाँ नहीं तो कभी ना कभी इस चीज को पढ़ा ही हुआ है. You have read about these things, so these things will not be new for you guys. So ये वही same चीज है, but the level of understanding वो थोड़ी सी हमें इसमें बढ़ानी है. Okay, questions बहुत आते हैं इस particular unit से, maximum questions are there. ठीक है, you will learn many things. So we'll be starting with this particular chapter. So दो parts हैं इस particular chapter में. If you see, one is your organism and one is your population. So we will be finishing this organism wala part today. Okay, and we'll be checking the population in the next class. Okay, so ये हम start करते हैं. So basically simple chapter है, 6-7 slide है, आज वही करते हैं. उसमें कोई doubt रहा तो अपन करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट का नाम. तो यूनिट का नाम इज इकोलॉजी. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजी, अगर कोई आपसे पूछे तो ये देखो बहुत सारे टर्म्स हैं जो बहुत ही सिमिलर साउंड करते हैं, बट दे हैव अ लिटिल स्लाइट डेविएटेड मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स. इकोलॉजी हो गया, इकोसिस्टम हो गया, राइट, एनवायरमेंट हो गया, सराउंडिंग हो गया. तो ये सारी चीजें हैं जिसको थोड़ा सा डिटेल में देख के एक आप इनको डिफाइन और डिस्टिंग्विश कैसे करोगे वो चीज देखनी है. तो बेसिकली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजी. सो इकोलॉजी कुछ नहीं है, देखो इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ओनली. तो इसमें क्या होगा कि देखो वेरियस ऑर्गेनिजम्स जो हैं, उन ऑर्गेनिजम्स जिस भी सराउंडिंग में वो रहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन अमंग देमसेल्व्स तो है ही. See, one organism interacting with other organism, that is one concept, वो तो हम पढ़ते ही हैं. But now we have to see उस particular organism का interaction with the surrounding as well. समझ रहे हो? तो organism का जो क्या बोलते हैं, organism का relationship with the surrounding, इस surrounding के वजह से how that organism has transformed itself. For example, if you see polar bear, right? अब polar bear क्या होते हैं? They stay in the both the poles, north pole, south pole, and वहाँ पे completely like throughout the year it is frozen only, right? So उन्होंने अपने आप को कैसे adapt किया है? So how is polar bear, that is our organism, how it is interacting with the surrounding, and the surrounding is the poles. जो वहाँ पे environment कैसा है, नहीं like वहाँ पे seasonality कैसी है, what happens when the temperature rises, what happens when temperature becomes a little normal. तो उस टाइम पे जो bear है हमारा, bear is just an example, there can be n number of organisms, like bacteria से लेके हम animals and plants, organism में हम सब consider कर रहे हैं, ठीक है, all the living organisms. तो ये मत consider करना कि organisms only means animals, no, organism मतलब living organisms, मतलब plants and animals both. So उस particular environment में, उस particular surrounding में, how this particular organism is staying, how it is interacting with that particular surrounding, वो हमें इस चैप्टर में चेक करना है. दैट इज नथिंग बट योर इकोलॉजी. तो इकोलॉजी क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. देखो लिखा हुआ डेफिनेशन ही पूछेंगे इस चैप्टर से और कुछ नहीं आएगा. ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद इंटरैक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर सराउंडिंग. ठीक है, ऑर्गेनिज्म की रिलेशनशिप विद द सराउंडिंग क्या है, कैसे है, हाउ इज इट इज इंटरैक्टिंग, हाउ कि उस पर्टिकुलर सराउंडिंग के वजह से एनिमल ने अपने आप में क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट. वो सारी चीजें आ जाती है इकोलॉजी के अंदर, वही सारी चीजें हम करेंगे. ठीक है, अब सराउंडिंग में भी दो चीजें आ जाती है. देखो अब सराउंडिंग इन्वॉल्व्स टू थिंग्स. अब उसके सराउंडिंग में देयर कैन बी वाटर आल्सो, है ना, देयर कैन बी सॉइल आल्सो, देयर इज एयर. तो ये सब सराउंडिंग में ही है ना, साइड में ही है, उसके आसपास ही है, करेक्ट. बट उसके आसपास देयर आर अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल, यस और नो. उसके आसपास देयर आर अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल, तो उनके साथ भी वो इंटरेक्ट करेगा. तो उनके साथ उसका इंटरेक्शन कैसा होगा वो भी हमें देखना है. तो व्हाट वी हैव टू सी इज कि सराउंडिंग के साथ उसका इंटरेक्शन. सराउंडिंग में कौन इंक्लूड कर रहे हैं हम? बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट दोनों.
दैट मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो और क्लियर अंडरस्टैंडिंग अगर आपको चाहिए, सो बायोटिक मतलब लिविंग, सो इंटरेक्शन विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ वो कैसे कैसे उसकी रिलेशनशिप है। लाइक फॉर एग्जांपल जो आपने ये सब देखा है ना, प्रेडेशन देखा है, सो वन ऑर्गेनिज्म लाइक इज डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर इट्स न्यूट्रिशन, तो ये प्रेडेशन हो गया, वो उसको प्रेडेट करेगा, राइट right? तो ये सारे इंटरेक्शन हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे। तो एक हो गया प्रेडेशन, एक हो जाता है फिर सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस भी पता है आपको, एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म दोनों साथ साथ में रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, राइट right? ये उसको कुछ देगा, ये उसको कुछ देगा, बट दे बोथ विल स्टे इन द सेम डायरेक्शन एंड बोथ विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, राइट। सिम्बायोसिस आप लोगों को पता है। predation, as you know, one organism which is a little bigger organisms, or you can say a more on a higher level, वो दूसरे स्मॉलर ऑर्गेनिज्म पे प्रेडेट करेगा। सो ये उनका इंटरैक्शन है। तो हाउ दैट दूसरा ऑर्गेनिज्म जो प्रे है, हाउ इट कैन सेव इटसेल्फ टू बिकम अ प्रे ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रेडेटर, तो वो उसका इंटरैक्शन है। वो सारी चीजें हमें देखनी है। सो इकोलॉजी मतलब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। हाउ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज इंटरैक्टिंग विद द सराउंडिंग अराउंड इट, ठीक है, कैसे। एंड सराउंडिंग कैन बी बोथ अबायोटिक एंड बायोटिक। बायोटिक में आ जाता है how that organism is interacting with the other organisms. Abiotic में जाता है how that organism is interacting with the non living things. For example temperature, कि उस एरिया में टेम्परेचर, अब देखो इफ यू सी पोल्स पे टेम्परेचर इज व्हाट, पोल्स पे टेम्परेचर इज ऑलवेज इन माइनस, ठीक है। तो हाउ दैट पर्टिकुलर पोलर बेयर कैन विथस्टैंड दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज है। इट हैज अ फर, राइट, इट हैज व्हाइट कलर, इट हैज व्हाइट कलर। सो ये सारी चीजें उसको इसको अडॉप्ट कर लेती है, उसको अडेप्ट कर लेती है, सो दैट वो उस पर्टिकुलर स्पेस में, उस पर्टिकुलर एरिया में सरवाइव कर पाए। तो वही सारी अडेप्टेशंस वगैरह कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, वही सब देखेंगे। मोर और लेस इस पर्टिकुलर जो भी वर्ड टर्म आपको दिख गया ना, एंड उसका एक डेफिनेशन अच्छे से लिख लो कहीं पे, ठीक है। जो भी टर्म आप पूरी एनसीईआरटी जस्ट रीड आउट करो, ठीक है, पूरी एनसीईआरटी रीड आउट करो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एंड एनसीईआरटी इज इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इसके अलावा ज्यादा आता नहीं है। पढ़ना चाहो तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे हम भी, ज्यादा हम एनसीईआरटी के अराउंड ही घूम रहे हैं, not deviating much, not going in much depth, okay, because not required। आपके लेवल के हिसाब से इस पे क्वेश्चन सिर्फ ये डेफिनेशन ही आने वाली है, ठीक है, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इकोलॉजी मतलब आप समझिए बायोटिक अबायोटिक, हम इंडिविजुअली देखेंगे भी बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या होते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, वो सब देखेंगे। हाँ, अब आपको ये देखा होगा, आप लोगों ने ये याद होगा, व्हाट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर ह्यूमन बॉडी का मैं आपसे पूछूं, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी, तो व्हाट इज योर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो आपको ये चीज याद होगी कि लाइक वी हैव अ सेल, राइट, वी हैव अ सेल। सेल से भी नीचे आपको जाना है तो यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल्स माइक्रोमोलिक्यूल्स डाल दो। मैक्रोमोलिक्यूल्स माइक्रोमोलिक्यूल से होते हुए, मैक्रोमोलिक्यूल्स माइक्रोमोलिक्यूल से होते हुए वी गो टू सेल, ठीक है। मेनी सेल कम टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू कम टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन, ऑर्गन कम टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम इन टुगेदर फाइनली मेक्स अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। यही सारी चीजें हैं। तो इसी से आप समझते हो व्हाट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अस, बट व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, वो हमें देखना है, राइट। सो देखो यहां तक तो सबको पता है कि ऑर्गेन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म कैसे बन गया, सब जानते हैं, ठीक है। कुछ नया उसमें अभी हम जोड़ने वाले हैं। तो क्या जोड़ रहे हैं, देखो, तो ये सारी चीजें आ जाती है लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, अनऑर्गेनिज्म, ये मतलब ऑर्गेनिज्म नहीं इंक्लूड करते, ऑर्गेनिज्म तो हायर लेवल है, बट ऑर्गन सिस्टम तक लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर ये सारे हायर लेवल, मतलब ये थोड़ा सा यहाँ तक आएगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो, अब सिंपल है, हाउ वी गेट अ पॉपुलेशन फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बट फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, व्हाट विल दे मेक, दे विल मेक अ पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल वी से, ओ लुक एट द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, लुक एट द पॉपुलेशन ऑफ फिश, लुक एट द पॉपुलेशन ऑफ ज़ेब्रा, लुक एट द पॉपुलेशन ऑफ जिराफ। तो ये सारी चीजें हम बोलते हैं। So what are we saying? We are seeing a group of population, a group of organisms, a group of organisms, वो भी group which are similar. Why similar? Because they are of a same species.
तो सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स को एक साथ हम बोल देते हैं पॉपुलेशन। समझ रहे हो? सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स, they live in a similar place, एक ही स्पेस में अगर रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही जगह इन द सेंस इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स, नेचुरल रीजन, तो वो ऑर्गेनिजम्स, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म बहुत सारे, एक ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, बट वही स्पीस, एक ही सिंगल स्पीसीज के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे? इट्स अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, पॉपुलेशन ऑफ लायन, राइट, पॉपुलेशन ऑफ फिश। तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉपुलेशन? लिखा हुआ है देखो, ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज टुगेदर फॉर्म पॉपुलेशन। ठीक है, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म बहुत सारे एक साथ, इनको हम बोल देते हैं पॉपुलेशन। इट्स अ पॉपुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। पॉपुलेशन। सो व्हाट हैपेंस, अब आपकी पूरी जो अब नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में वी डू नॉट हैव अ सिंगल स्पीसीज पॉपुलेशन, हमारे पास एन नंबर ऑफ स्पीसीज है, हमारे पास एन नंबर ऑफ स्पीसीज की पॉपुलेशन है ना। we have population of tiger as well, we have population of lion as well, we have population of rat as well, we have population of kangaroo as well. So ये बहुत सारी population है। अब इन सारी population को अगर एक साथ आप कंसिडर करते हो तो आप उसे बोलते हो कम्युनिटी। ठीक है, अब कम्युनिटी इसको आप नॉर्मल अपने उसमें भी देख सकते हो, लाइक हाउ वी कॉल है कम्युनिटी, कि कम्युनिटी मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज come together, they form a community, right? Well, for example, a society, if you say, basic example, each individual family is a population because they belong to a same family, so that is a single population. But all the families together, all the families together staying in a society, then we will call them as a community, because that is a community. Why community? Because they all stay in a same area, there are different species, they are different families, but they stay in a same area, तो उसे हम बोल देते हैं communities. So बहुत सारी population of different species come together to form what? A community. To come together to form a community. अब ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे the area is also expanding. वैसे वैसे the area is also expanding. For organism is एक single organism कितनी जगह लेगा, but a population, वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में सारी स्पीसीज, दे विल टेक अ लार्जर एरिया। नाउ बहुत सारी स्पीसीज टुगेदर कम्युनिटीज, दे विल टेक अ मच लार्जर एरिया। तो एंड तक पहुंचोगे तो उसमें हम बायोस्फीयर ही डालेंगे पूरा। समझ रहे हो? चलो धीरे धीरे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप, कहीं डाउट रहा तो पूछना। ओके, सो पॉपुलेशन से कम्युनिटीज तक पहुंच गए हम। ठीक है, बहुत सारी पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कम टुगेदर टू फॉर्म कम्युनिटी। अब देखो, अब क्या है? अ कम्युनिटी व्हिच इंटरैक्ट्स विद इट्स सराउंडिंग, देन वी कॉल इट एन इकोसिस्टम। ठीक है, अब एक कम्युनिटी मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स। अब वो सारे ऑर्गेनिजम्स इन प्लस वो सारे ऑर्गेनिजम्स प्लस उसकी सराउंडिंग को हम बोल देते हैं इकोसिस्टम। वो सारे ऑर्गेनिजम्स इज लिविंग थिंग्स, प्लस उसकी सराउंडिंग दैट इज नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब उसके सराउंडिंग, उसके आसपास के पॉन्ड्स वगैरह हो गए, उसके आसपास के नेचुरल, उसके आसपास के जंगल्स वगैरह हो गए। ठीक है, कोई रिवर हो गई, ठीक है, वाटर हो गया, लैंड हो गया, सॉइल हो गया। सो ऑल दोस थिंग्स, ऑल दोस सराउंडिंग ऑफ दोस पर्टिकुलर कम्युनिटीज। ठीक है, उस पूरी कम्युनिटी, वो पूरी कम्युनिटी जिस एरिया में रह रही है, वो पूरा सराउंडिंग को वी विल कॉल इट एन इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम इज अ मच लार्जर एरिया। अब इसमें सिर्फ हम ऑर्गेनिजम्स नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिजम्स जहां पे रह रहे हैं हम वो भी कंसिडर कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म जहां पे रह रहे हैं हम वो भी कंसिडर कर रहे हैं। तो कम्युनिटी प्लस उसका इंटरैक्शन विद इट्स सराउंडिंग, देन वी विल कॉल इट एज एन इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम नाम से पता चल रहा है, इट्स अ बिगर कांसेप्ट ना, वी आर टॉकिंग अबाउट एन इकोसिस्टम, राइट? ठीक है, तो कम्युनिटी से इकोसिस्टम पे पहुंच गए। अब इकोसिस्टम की बात आता है, द थिंग व्हिच इज नोन एज बायोम्स। बायोम्स इज मे बी, आई थिंक आपके लिए नया होगा, इकोसिस्टम तक सबने सुना है, बायोस्फीयर आई होप सुना होगा आपने, बट बायोम्स इज अ लिटिल डिफरेंट। बायोम्स, बट यू नो व्हाट इज बायोम्स? देखो ये बहुत सिंपल। डेजर्ट्स आपको पता है, डेजर्ट्स खाने वाले डेजर्ट्स नहीं, डेजर्ट कैमल वाले डेजर्ट, वो डेजर्ट, तो दैट पर्टिकुलर डेजर्ट इज अ बायोम। अब समझ रहे हो? अब एक सिंपल एग्जांपल से समझ लो, वो पर्टिकुलर डेजर्ट है, राइट? वो पर्टिकुलर डेजर्ट है। अब वो पर्टिकुलर डेजर्ट में देयर कैन बी, ऐसा तो नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर डेजर्ट में सिर्फ कैमल रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म थोड़ी रह रहा है। देयर आर मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर स्टेइंग देयर। कैमल भी रह रहा है,
कैक्टस का प्लांट भी उग रहा है वहीं पे, देन वी हैव सम काइंड ऑफ स्कॉर्पियंस एज वेल, देन वी हैव सम काइंड ऑफ स्नेक्स एज वेल। तो ये सारी हो गई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इन सब की डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को एक साथ अगर हम बोलेंगे तो वी विल से कि भाई हाँ ये एक कम्युनिटी बना ली इन्होंने, मतलब ठीक है। अब बहुत सारे सांप आ गए, बहुत सारे स्कॉर्पियंस आ गए, बहुत सारे कैमल्स आ गए, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन हो गई। इन डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन को अगर कंबाइन आप कर दो तो बोलोगे कम्युनिटी ऑफ डेजर्ट। यू कैन से डेजर्ट की कम्युनिटी क्या है, डेजर्ट की कम्युनिटी ये है कि ये सारे ऑर्गेनिज्म डेजर्ट में रहते हैं, ठीक है। अब डेजर्ट का इकोसिस्टम क्या है कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स किस कंडीशन में रहते हैं, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, हाई इंटेंसिटी ऑफ हीट, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। वाटर कंटेंट बहुत ही वाटर बहुत ही मिनिमल, ठीक है। तो उसमें भी कैसे सरवाइव करते हैं, उसमें कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, वाटर की कमी को कैसे पूरी करते हैं, तो वो आ जाता है आपके इकोसिस्टम में, ठीक है। अब नाउ इफ यू कंसिडर बायोम, बायोम इज एन लार्जर यूनिट। तो इसमें इसमें आप क्या करोगे, बहुत सारे इकोसिस्टम आ जाएंगे। अब एक इकोसिस्टम होता है जैसे फॉर एग्जांपल पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड हो गया, पॉन्ड के सराउंडिंग में क्या क्या, पॉन्ड के अंदर डिफरेंट फिश भी है, फ्रॉग भी है, टैडपोल्स भी है, बहुत सारी चीजें हैं, प्लांट्स भी है, जूप्लांक्टन्स, फाइटोप्लांक्टन्स, सब सारी चीजें। तो ये एक पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, ठीक है, ठीक है, पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया। तो ये एक इकोसिस्टम हो गया, बट वहीं पे उसके साइड में शायद नॉर्मल लैंड हो, वहां पे पॉन्ड नहीं हो, पानी नहीं हो, नॉर्मल लैंड होगा। नॉर्मल लैंड होगा तो उसमें कौन रहेगा, जो अपने टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिजम्स हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मल प्लांट्स होंगे, फॉर एग्जांपल मैंगो का प्लांट होगा, पीपल का प्लांट होगा, अपने टाइगर होंगे, लायन होंगे, ठीक है, स्नेक्स होंगे। सो ये हो गया एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, है ना। पॉन्ड इकोसिस्टम देख लिया, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देख लिया। फॉर एग्जाम्पल उसी के सराउंडिंग में यू हैव मरीन इकोसिस्टम, आपके पास आप के पास ओशन आ गया साइड में, राइट। तो वो एक मरीन इकोसिस्टम होगा। अब ये सारा इकोसिस्टम, डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम को आप कंबाइन कर लो, डिफरेंट, क्योंकि फिर ये बायोम्स इज अ ह्यूज एरिया, बायोम्स इज अ ह्यूज एरिया, अंडरस्टैंड। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम को आप अगर कंबाइन कर लोगे ना, देन यू विल कॉल इट एज अ बायोम। तो आपने अगर नाम सुना है कि डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट क्या होते हैं आपके, डेजर्ट इज एरिया जहां पर हाई इंटेंसिटी ऑफ ये है, हीट है, ठीक है, वाटर की बहुत स्कैरसिटी है। तो ये है बेसिकली, देयर इज हाईली वेरी लो नेचुरल वेजिटेशन, वेजिटेशन बहुत ही कम है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, दैट इज द ओनली रीजन, हाई टेम्परेचर एंड लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो उस केस में ऑर्गेनिजम्स कैसे वहां रहता है वो हम स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिज्म ने क्या अपने आप को कैसे चेंज किया हुआ है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो इज द और एक आपने ये भी सुना होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सुना है, टेम्परेट फॉरेस्ट सुना होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सुना होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट सुना होगा, राइट। ये सारे नाम आपको याद है ना, ठीक है, ये सारे नाम आपको याद है, छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाया गया है ये सब, ठीक है। अब ऑल दीज थिंग्स, फॉर एग्जांपल इफ यू गो इन एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, इफ यू गो इन एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट इज हैज abundance of plants, ठीक है, abundance of plants, और वो भी n number of varieties, इतनी varieties कि पूछो मत, and they are always lush green, they never dries up, और ठीक है, उनको कुछ नहीं होता, they never dries up, पतझड़ नहीं आता वहां पे, they are completely throughout the year they stay what, they stay green, इसीलिए उसका नाम ही है एवरग्रीन। सो ग्रीन रहने के लिए प्लांट को क्या चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम सॉइल कंडीशंस चाहिए, ऑप्टिमम रेनफॉल चाहिए, ठीक है। तो ये सारी ऑप्टिमल कंडीशंस उसको मिल रही है, तभी इट इज बिकमिंग एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया, तो वो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है आपका, दैट इज योर बायोम्स। अब आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम होंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर एक पॉन्ड होगा तो वो पॉन्ड का इकोसिस्टम बन गया। एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर मान लो कोई रिवर बह रही है तो वो रिवर का इकोसिस्टम बन गया। एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर टेरेस्ट्रियल लैंड है, ठीक है, तो वो टेरेस्ट्रियल लैंड इकोसिस्टम बन गया, समझ रहे हो। और हर पॉन्ड, जैसे फॉर एग्जांपल पॉन्ड है, अब पॉन्ड में देयर विल बी कम्युनिटीज, फॉर एग्जांपल पॉन्ड में देयर विल बी कम्युनिटीज ऑफ फिश, पॉन्ड में देयर विल बी कम्युनिटीज ऑफ टैडपोल्स, फॉर पॉन्ड में देयर विल बी कम्युनिटीज ऑफ फ्रॉग, ठीक है। पॉन्ड में ही देयर विल बी कम्युनिटीज ऑफ जूप्लांक्टन्स, फाइटोप्लांक्टन्स। सो ये बेसिक कम्युनिटीज हो गई। फिर इनकी पॉपुलेशंस देख लो, सेम स्पीसीज कंसीडर कर लो तो पॉपुलेशन, फिर एक इंडिविजुअल फ्रॉग को कंसीडर कर लो तो इट्स एन ऑर्गेनिज्म। सो आई होप द बिगर पिक्चर इज क्लियर नाउ, ठीक है, बिकॉज वी हैव सीन इट विद वेरियस एग्जांपल्स, ठीक है।
So if it is clear, I think अब थोड़ा मुझे confirmation दे दो, because this is more or less very confusing part. तो अगर clear हो रहा है, समझ में आ रहा है basic चीजें, तो एक बार मुझे confirmation दो कि हाँ भाई समझ में आ रहा है. Everyone at least, few of them at least, सब तो नहीं देते, but जिनको आ रहा है please वही बता दो. फिर बायोस्फीयर देखेंगे. नहीं आ रहा है तो पूछ लो. ओके, गुड, ठीक है. मेजॉरिटी ऑफ देम आप लोगों को आ रहा है. गुड, थैंक गॉड पीपल आर रिप्लाइंग. ओके, नाउ वी कम टू द पार्ट व्हिच इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर. अब आपने लिथोस्फीयर पता है, एटमॉस्फेयर तो पता ही होगा. एटमॉस्फेयर इज मतलब जो लैंड के ऊपर जितना एरिया जो है टिल सम किलोमीटर्स. ज्योग्राफी नहीं पढ़नी हमें. टिल सम किलोमीटर वी कॉल इट एटमॉस्फेयर. उसके ऊपर उसके जो स्ट्रेटोस्फीयर, थियोस्फीयर जो भी आते हैं वो आने दो, ठीक है, हमें नहीं करना. लिथोस्फीयर इज बेसिकली लैंड. लिथोस्फीयर इज बेसिकली लैंड, ठीक है. तो बायोस्फीयर में क्या होता है? बायो से समझ जाओ लिविंग थिंग है. तो अब बायोस्फीयर वो है, बायोस्फीयर इज दैट लार्ज यूनिट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहे हैं. अब से एटमॉस्फेयर पे ऊपर तक, मैक्सिमम एटमॉस्फेयर तक जितने हाइट तक जाओ, एक लिमिट के हाइट के बाद देयर इज नो ऑर्गेनिजम्स. सेम गोज इन द डीप ओशंस एज वेल. बहुत सारे नीचे तक जाओ, देयर आर ऑर्गेनिजम्स, बट एट मेजर डेप्थ्स देयर आर हाईली सम ऑर्गेनिजम्स. बेसिकली बैक्टीरिया वगैरह बचते हैं नीचे, ठीक है. बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर विथस्टैंड कर पाते हैं ना, बिकॉज वो नॉट कोर तक तो नहीं जाते हैं. कोर इज वेरी हॉट, कोर जब तक जाना इज डिफिकल्ट. बट डीप सी वेंट्स होते हैं किसी जगह पे. डीप सी वेंट्स क्या होते हैं? डीप सी में बिकॉज योर कोर इज हॉट, जो आपकी अर्थ की कोर है दैट इज ऑलवेज हॉट. तो वहां से, बिकॉज जो ये आपके लावा वोल्केनोज वगैरह निकलते हैं, तो वहां से जो हीट अप होके वो जो पानी होता है गर्म हो जाता है. वहां पर टेम्परेचर गोज टू 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है. वहां पर भी नॉर्मल है, हम तो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस में. मोस्ट ऑफ द हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, बट सम बैक्टीरिया सर्वाइव. अब वो कैसे सर्वाइव करते हैं वो भी देखेंगे कि उनमें ऐसा क्या है जो हमें नहीं है, वो कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं. तो बायोस्फीयर इज नथिंग बट ऊपर से लेके जमीन तक तो ठीक है, ऊपर से लेके हवा प्लस जमीन प्लस अंडर द ओशन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनका एनवायरमेंट को हम बोल देते हैं बायोस्फीयर. समझ गए सिंपल चीज है, ठीक है. और एक सिंपल लैंग्वेज में बोलिए तो जितने बायोम्स हो गए आपके पास, जितने बायोम्स हो गए सबको कंसिडर कर लो. जितने बायोम्स हो गए सबको कंसिडर कर लो, आपका बायोस्फीयर बन जाएगा. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एयर भी इंक्लूडेड है टिल सम एज, कि भाई जहां तक थोड़े ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं. डीप ओशंस भी इंक्लूड कर रहे हैं, लैंड तो इंक्लूड कर ही रहे हैं. तो इट इन्वॉल्व्स लैंड, सी एंड एटमॉस्फेयर. ये सारी चीजों को आप इंक्लूड कर लो. जहां जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इंटरेक्ट कर रहे हैं अपनी सराउंडिंग के साथ, उसको आप बोल देते हो बायोस्फीयर, ठीक है. बायोस्फीयर नाम से आ जाना चाहिए ना, लिविंग लिखा हुआ है, बायो लिखा हुआ है, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. अब मुझे कंफर्म कर दो कि शुड वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. चलो जल्दी से कंफर्म कर दो. ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं. अब हमने जो बात की यहाँ पर ना, जहां हमने ये यहाँ डिस्कस किया, हमने यहाँ बोला कि यार ये कौन कौन से हैं ये जो बायोटिक सेक्टर हैं, अबायोटिक सेक्टर हैं. ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने की अभी हमारी वो है नहीं. हमने ऑर्गेनिजम्स बहुत पढ़ लिए. हमने प्लांट किंगडम, हमने मोनेरा से लेके एनिमल किंगडम हमने सब पढ़ लिया. तो ऑर्गेनिजम्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू नो ऑर्गेनिजम्स, यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल. अब हमें देखना है कि उनका अबायोटिक फैक्टर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं. बायोटिक फैक्टर, यार बायोटिक फैक्टर सिंपल है. बायोटिक फैक्टर से वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इट्स अ स्मॉल टॉपिक जो हम लास्ट में करेंगे.
ठीक है, कि उनका रिलेशन पॉजिटिव पॉजिटिव है क्या, मतलब वो दोनों अगर दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे हैं एक जगह पे, एक कम्युनिटी में, एक सराउंडिंग में, तो क्या वो दूसरे से इंटरेक्ट, उनका पॉजिटिव इंटरेक्शन है क्या, कि मतलब एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, या फिर न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो उसको भी पॉजिटिव बोलोगे ना, दूसरे को मार नहीं रहा है तो पॉजिटिव ही है ना। फिर एक हो जाता है नेगेटिव इंटरेक्शन, कि भाई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है फॉर इट्स न्यूट्रिशन, तो वो दूसरा ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेता ही रहेगा, तो दिस इज नेगेटिव इंटरेक्शन। न्यूट्रिशन लेना तक तो चलो ठीक था, ये दूसरे दूसरे ऑर्गेनिज्म को ही खा जाएगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के उसको खा जाएगा, तो ये तो बहुत ही ज्यादा ओवर ओवर नेगेटिव हो गया। ठीक, ओवर नेगेटिव लिखता नहीं है, लिखना नेगेटिव ही है, तो ये नेगेटिव इंटरेक्शन हो गया। तो ऐसे ही 3 या 4 टाइप के इंटरेक्शन है, वो देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में होगा, अभी नहीं होगा, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, अब हमें देखना है, अब हमें देखना है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम जिनकी बात कर रहे हैं तब से, ये अपनी सराउंडिंग से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये अपनी सराउंडिंग से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, मतलब हाउ हाउ सराउंडिंग डिफाइंस देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट में ओपुंशिया ही क्यों ग्रो करता है, डेजर्ट में मैंगो ट्री क्यों नहीं ग्रो कर रहा है। ठीक है, दीज थिंग्स, ये चीजें आपको देखनी है। पोलर बियर क्यों इक्वेटर पे नहीं रह सकता, पोलर बियर क्यों हमारे केरला साइड में नहीं आ सकता, क्यों वो सरवाइव नहीं कर सकता, ये चीज हमें देखनी है। ठीक है, यस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वही ना, क्लाइमेटिक कंडीशन इज व्हाट, योर टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, तो यही सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। तो एक एक चीजें देखेंगे, अबायोटिक फैक्टर कैसे इंटरेक्ट करता है पॉपुलेशन से। ठीक है, तो जो मेजर एरोबैटिक फैक्टर है ये अपने 3 या 4 ही हैं, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है, ये सब है। देखते हैं, सो पहला इज योर टेम्परेचर। अब टेम्परेचर देखो यार, टेम्परेचर बहुत ही बड़ी रेंज है ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, बहुत ही बड़ी रेंज है, तो बेसिक रेंज है जिसमें नॉट ह्यूमंस ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं, दैट इज योर सब 0 to 50 डिग्री सेल्सियस। इसमें मेजॉरिटी मतलब 90% ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इसमें इस लेवल, इस रेंज में आ जाएंगे। सब जीरो मतलब होता है कि जीरो से थोड़ा सा नीचे, मतलब अराउंड 0 से -50 की रेंज में, -50 और -40 की रेंज में। ठीक है, वो होता है सब 0 to 50 डिग्री सेल्सियस इज योर डेजर्ट डिक्लाइन। डेजर्ट में जो क्लाइमेट होता है 50-55 डिग्री सेल्सियस, 50 है, बट अभी धीरे धीरे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज कर चुका है, और पता नहीं कितने डिग्री से राइज कर सकता है। तो ये हो गया सब 0 से 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। इस पे मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव। लाइक फॉर एग्जांपल ह्यूमंस को आप माइनस में डाल दो, वहां ले जाओ, लेह लद्दाख में ले जाओ, माइनस में हम वी कैन सर्वाइव, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन सर्वाइव। हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, राइट, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। और हमें गर्मी में ले जाओ, हमें डेजर्ट में ले जाओ, हमें राजस्थान ले जाओ, हमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, वी कैन सर्वाइव। तो दैट इज व्हाट, तो ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर सकता है इतना इतना टेम्परेचर, सब 0 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस। बट यही सिंपल रेंज नहीं है, ऑर्गेनिजम्स लाइक आर्कीबैक्टीरिया कैन विथस्टैंड अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस एज वेल। सो डीप सी वेंट्स जो होते हैं, डीप सी वेंट्स मतलब जो मैंने आपको बताया कि ओशन के फ्लोर पे देयर आर सम वेंट्स जो कोर की हीट को थोड़ा बाहर निकालते हैं, कोर की हीट को बाहर निकालते हैं, जिसे हम वेंट बोलते हैं। वहां पर टेम्परेचर गेट्स अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पर आर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव कर पाता है, ऐसा स्टडी किया गया है। तो समझ लो, आर्कीबैक्टीरिया इज नथिंग बट योर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो टेम्परेचर बहुत ही वेरी मतलब वेराइटी ऑफ टेम्परेचर ह्यूमंस, नॉट ह्यूमंस, ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट। ठीक है, वेराइटी ऑफ टेम्परेचर ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट। ठीक है, तो बेसिक 2 चीजें आती हैं, एक होता है यूथर्मल ऑर्गेनिजम्स, एक होता है स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स। सो यूथर्मल ऑर्गेनिज्म इज लाइक अस। यूथर्मल ऑर्गेनिजम्स मतलब कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल अस ह्यूमंस, कैट, डॉग्स, आप ये देखोगे हर जगह मिल जाएंगे, है ना, ह्यूमन, कैट, डॉग्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। बट पोलर बेयर आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो, पोलर बेयर आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो। वही है, कोरल्स है, कोरल रीफ पता है आपको, कोरल क्या होते हैं, कोरल कोरल कोरल्स पता है। इट्स एन ऑर्गेनिज्म, इट्स एन ऑर्गेनिज्म, इट्स एन एनिमल। कोरल नहीं पता, कभी गूगल करना। ठीक है, लिख लो इसको, कोरल गूगल करना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और यही धीरे धीरे दे आर डिप्लीटिंग, दे आर वाई डिप्लीटिंग, बिकॉज कोरल को यार एक थोड़ा नॉर्मल सा टेम्परेचर, एक फिक्स्ड टेम्परेचर रेंज चाहिए। मतलब कोरल को थोड़ा ठंडा पानी ज्यादा चाहिए। मरीन है, यस मरीन है, पानी में ही रहते हैं, ओशंस में ही ओशंस में नहीं रहते, ओशन शोर पे रहते हैं।
ठीक है, ओशन शोर मतलब समझते हो ना, मतलब टुवर्ड्स द बीच से थोड़ा सा आगे चल के, नॉट इन द डीप ओशंस, डीप ओशंस में भी होते हैं बट उतने नहीं। ठीक है, तो कोरल्स मैं क्या बता रहा था, कोरल्स हैज अ वेरी स्पेसिफिक टेम्परेचर, कि भाई ये टेम्परेचर में ही वो रहेंगे। जैसे जैसे अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, राइट, टेम्परेचर राइज हो रहा है मतलब सिर्फ हमारा नहीं हो रहा है, पूरे वर्ल्ड का ही हो रहा है। तो उस वजह से पानी का भी टेम्परेचर राइज हो रहा होगा, तो पानी जैसे जैसे गर्म हो रहा है, दैट इज अ नेगेटिव, पुटिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कोरल्स। तो कोरल ब्लीच हो जाती है, कोरल ब्लीचिंग उसे बोलते हैं, कि कोरल के अंदर कुछ फंगस वगैरह रहते हैं जो उसको अलाइव, जिंदा रखते हैं, वो मर रहे हैं, तो उसके होने से कोरल ब्लीच हो रहा है। कोरल एक बार ब्लीच हो जाता है ना, ब्लीच हो जाता है मतलब उसका जो लिविंग पार्ट हो जाता है, लिविंग पार्ट जो कोरल का होता है वो निकल जाता है। फिर बचता क्या है, एक स्ट्रक्चर जो मोस्टली आप लोग अगर जाओगे इस तरफ किसी भी ओशन शोर पे जाओगे, तो नॉर्मली आपको जो पत्थर वगैरह मिलते हैं, नॉट द पेबल्स, पेबल्स की बात नहीं चल रही है, वो मत उठा लेना, को इज लाइक कैसे बोलूं, इट्स मोर और लाइक अ स्पॉन्ज काइंड ऑफ अ थिंग, स्पॉन्जी, बहुत सारे पोर्स होंगे उसके अंदर, स्पॉन्जी होगा, बहुत सारे पोर होंगे, बट स्पॉन्ज जैसा सॉफ्ट नहीं होगा, इट विल बी एज हार्ड एज अ रॉक। ठीक है, पत्थर जैसा होगा, बट पत्थर जैसा होगा बट इट विल हैव मेनी होल्स। ठीक है, उन्हें हम कोरल्स बोलते हैं। तो कोरल्स इज स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म, व्हाई, बिकॉज इट नीड्स अ स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज, उसी में रह सकता है, जैसे टेम्परेचर रेंज बढ़ेगी वो मर जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर में कुछ ज्यादा नहीं पड़ना है, यूथर्मल ऑर्गेनिज्म सबको याद रखने, स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म सबको याद रखने। ठीक है, तो यही है अबायोटिक फैक्टर। पहला इज योर टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ही डिफरेंट वे से इंटरेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर विच दे कैन सर्वाइव। बट ये है एक चीज, ये चीज याद ध्यान में रखो कि ऑप्टिमम फंक्शनैलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल हैपन एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड बाय देम, राइट, कि ह्यूमन बींग्स हैव अ ऑप्टिमम टेम्परेचर, की इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारे अंदर के जो एंजाइम्स हो गए, हमारे अंदर के जो एंजाइम्स हो गए, ठीक है, हमारे अंदर के एंजाइम्स विल रिएक्ट इन अ बेटर वे। बट ह्यूमंस क्या है, वी कैन मेंटेन आवर इंटरनल टेम्परेचर, राइट, हम अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, 37 डिग्रीज के आसपास वो रहता है। तो हमारे जो एंजाइम्स है अंदर ही है, बाहर तो है नहीं, तो वो हमेशा एक ऑप्टिमम कंडीशन में ही रहते हैं। बट इफ यू मूव टू द नॉर्दर्न पार्ट, है ना, मतलब इधर ऊपर चलते हो आप, जम्मू वम्मू साइड जाते हो, नॉर्थ ईस्ट साइड जाते हो, वहां पर टेम्परेचर थोड़ा राइज हो जाता है, वहां पर टेम्परेचर थोड़ा राइज 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 होता है, नहीं राइज नहीं होता, नीचे जाता है, टेम्परेचर गिरता है, माइनस में होता है। तो वहां पर जो एंजाइम्स होते हैं, दे विल टेक अ लिटिल टाइम टू गेट अक्यूमुलेटेड टू द सराउंडिंग। ठीक है, उसके लिए आपकी बॉडी थोड़ी देर के लिए मतलब व्हाट यू से, एक फीवर काइंड ऑफ अ थिंग आता है, फीवर काइंड ऑफ अ थिंग आता है, जिससे आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाती है उस एरिया में। ठीक है, तो यही है कि हर ऑर्गेनिजम्स का एक सर्वाइव तो वो किसी भी टेम्परेचर में कर लेंगे, अगर वो यूथर्मल ऑर्गेनिजम्स है। स्टीनोथर्मल है तो नो चांस कि भाई उसको उसका टेम्परेचर नहीं मिला तो दे विल डाई ऑफ, राइट। बट यूथर्मल है, व्हाट दे विल डू इज, उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसपे वो उनकी बॉडी परफेक्टली एक्ट करेगी, उसका मेटाबॉलिज्म परफेक्टली एक्ट करेगा। बट टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे हो गया तो मेटाबॉलिज्म में थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, मेटाबॉलिज्म में थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, बट यस ऐसा नहीं होगा कि दे विल डाई ऑफ, बट दे कैन सर्वाइव इन दोस कंडीशंस, राइट। तो यही है आपका टेम्परेचर वाला टॉपिक। नाउ कम्स द वाटर। वाटर इंपॉर्टेंट है कि नहीं, अबायोटिक फैक्टर फॉर ऑर्गेनिजम्स, डू यू थिंक वाटर इज इंपॉर्टेंट और नॉट, क्या जरूरत है? There is hardly any activity which you can do without water. First of all, you cannot survive without water. That is your one thing. ट्रांसपोर्टेशन जो आपकी बॉडी में हो रही है ब्लड की, कैसे हो रही है? प्लाज्मा, ब्लड, ब्लड हैज प्लाज्मा, प्लाज्मा हैज व्हाट? वाटर। ठीक है, सेम थिंग गोज विद योर प्लांट्स। प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम, जो एक सैप जो यूज होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम सैप, ठीक है, जाइलम सैप, दैट हैज व्हाट? दैट हैज वाटर। ठीक है, so you understand the importance of water. प्लांट्स को ग्रो करने के लिए दे नीड वाटर। वाटर में क्या आता है? मिलके मिनरल्स आते हैं जिससे प्लांट ग्रो कर पाता है। प्लांट ग्रो करेगा तो सारे ऑटोट्रॉफिक जो एनिमल्स हैं प्लांट पे डिपेंडेंट हैं, ह्यूमंस प्लांट पे ही डिपेंडेंट है मोस्टली। वी हैव अदर सोर्स आल्सो, द पीपल हु ईट,
तो बट मोस्टली ऑटोट्रॉफिक जो एनिमल्स या प्लांट्स हैं वो इस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे, एंड प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट है वाटर, तो वाटर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बेसिक है, वाटर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखो कि वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से कि वाटर भाई वहां अवेलेबल है या नहीं है, हाउ द surroundings change. For example, if you go to that's a silly question जो भी आपने पूछा है, because they are losing their water from their eyes, so they need water so that they can lose more water from their eyes. That is the silliest answer you can get then. If your question was silly, that is the silly answer you have. Okay, now it's more or less when you cry, hota kya hai, you are losing water, that is one thing, but you are also, if at all you are screaming, so your throat gets dry, so that's why people offer you water. Please take this water and take a chill pill and just relax, calm down, ठीक है, इसलिए पानी ऑफर करते हैं. No problem. Good. Moving on. So we were talking about water, right? So अब मैं आपको ये बता रहा था कि अब if you travel from Kanyakumari till your Jammu and Kashmir, you will observe variety of regions, right? ठीक है, variety of regions towards the equator जो level पड़ता है मध्य प्रदेश के आसपास, equator line थोड़ी सी नीचे से जाती है, ठीक है, तो वो region has maximum intensity of sunlight, as you know. equator पे sunlight की intensity maximum होती है, बट फिर थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, देन यू हैव व्हाट, देन यू हैव योर डेजर्ट, ठीक है, राजस्थान डेजर्ट, देन यू हैव योर रन ऑफ कच्छ, जहां पे सेम चीज, हाई इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर एंड वेजिटेशन बहुत ही कम है, ठीक है, वेजिटेशन बहुत ही कम हो गई, ठीक है. अब एक और चीज इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अब देखो जहां जहां पे वाटर है, जहां जहां पे वाटर है, मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी कैन डिफाइन द एरिया, हाउ द एरिया विल बी, ठीक है. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अगर होगी, फॉर एग्जांपल इफ यू सी इन हरियाणा और इन पंजाब, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज देयर, तो उनकी जो वेजिटेशन है, दैट इज परफेक्ट, राइट. वहां पर आप कोई भी नहीं, बट मैक्सिमम क्रॉप्स जो होगी आप उगा सकते हो, राइट, करेक्ट है. same does not go in Rajasthan. If you see, there water is not there, so वहां पर you have a specific variety of crop जो आप वहां पर उगा सकते हो. Not every crop can grow there, right? You have to grow that particular crop जो वो particular temperature adopt कर सकती है, जो वो particular temperature adopt कर सकती है, correct? तो ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी. अब क्या करना है आपने इसमें, तो एक्वेटिक, अब ये एक और चीज इंपॉर्टेंट है. अब क्वेश्चन ये होता है कि यार फिर एक्वेटिक एनिमल्स को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए कि यार उनके पास पानी है, बट ऐसा नहीं है. अब एक्वेटिक एनिमल्स के पास प्रॉब्लम है कि उनको क्वालिटी ऑफ वाटर चाहिए. लाइक व्हाट हैपेंस इज पीएच, वाटर का पीएच वगैरह चेंज होता रहता है, वन थिंग. देन वाटर की सैलिनिटी चेंज होती रहती है, दैट इज वन थिंग. देन देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स जो हम डालते हैं, दैट इज वन थिंग, ठीक है. तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ठीक है. पीएच तो आपको पता ही है क्या है. देन सॉल्ट कंसंट्रेशन इज लाइक, जैसे ओशन आता है, ओशन हैज सॉल्ट कंटेंट, बट योर रिवर जो होती है, रिवर डज नॉट हैव सॉल्ट कंटेंट. केमिकल्स इज लाइक बेसिक केमिकल्स जो हम ह्यूमन एज अ चीजें डालते हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस व्हिच इज हैपनिंग इन वाटर, सो उससे भी केमिकल्स ड्रेन हो जाता है किसमें, ओशनिक वाटर में, ठीक है. तो क्वालिटी ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म दो दे हैव इनफ ऑफ वाटर, बट the quality of water which they require is also suitable. Like for example, some fishes cannot survive in your oceans. कुछ fish जो हैं, जो fresh water fish जो हैं, they cannot survive in your saline water ना, salty water में नहीं survive कर सकते. Same is vice versa also, कि salty जो oceanic fishes होती हैं वो आप river में डाल दो तो they cannot survive. Why? Because their body has some kind of adaptation, some kind of changes, some kind of metabolic activities जो उनको अपने ही conditions में
ऑप्टिमली प्रोवाइड होती है और तभी वो परफेक्टली वर्क कर पाते हैं। ठीक है, सेम एक और चीज है कि बॉडी में जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है या फिर बॉडी में जो भी सब्सटेंस हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर इज एसेंशियल। ठीक है, हाँ, अब फिर अगेन दो कंसेप्ट आ जाते हैं, एक होता है यूरोहलाइन, एक होता है स्टीनोहलाइन। अब यूरोहलाइन इज लाइक ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज। ठीक है, यूरोहलाइन organisms that can tolerate a wide range of salinity। ठीक है, करेक्ट। यूरोहलाइन इज दिस कि ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टॉलरेट, यूरो जहां आ गया मतलब वाइड रेंज है, और स्टीनो जहां पे आ गया जो मतलब नैरो रेंज है, तो ये बेसिक है। तो यूरोहलाइन इज जो ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को कर सकते हैं। एंड देन वी हैव स्टीनोहलाइन, यस, उसको सलाइन नहीं बोलते हैं, उसको हलाइन ही बोलते हैं। इट इज मोर और लेस नॉट कंफ्यूजिंग, बट सैलिनिटी को जब लिखते हैं इन कंसेप्ट में तो वी कॉल इट हलाइन। Yeah, haline and saline that you can remember. Good. Eurohaline is organism जो wide range of temperature salinity कर सकते हैं। Then we have stenohaline जो narrow range of salinity को withstand कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो यहाँ पर हमने देख लिया, वाटर देख लिया और टेम्परेचर देख लिया। अब देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जो है आपका ये लाइट। ठीक है, आई होप ये जो पीछे वाले दो आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर आ गया। जस्ट कंफर्म कर दो मुझे कि जो पीछे वाले दो कंसेप्ट हैं ये आपको क्लियर हुए हैं कि नहीं, इसमें कुछ है क्या नहीं। क्योंकि बेसिक आप अपनी एनसीईआरटी रीड करना, उसमें आपको एक दो लाइन डेफिनेटली एक्स्ट्रा मिल सकती है। एक्स्ट्रा इन द सेंस कि कुछ और डायलॉग लिख दिया होगा, एक और जानवर के बारे में बता दिया होगा कि ये इतना टेम्परेचर विथस्टैंड करता है, ये इतना करता है, बस सेम थे। ठीक है, ठीक है, यू गेट इट। So now the thing is we have this new thing which is called light। अब लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन यू से लाइट इज इंपॉर्टेंट, चलो मुझे बता दो बिना इसको देखे। चलो आई विल शिफ्ट इट। अब मुझे बता दो हाउ डू यू थिंक लाइट इज इंपॉर्टेंट। लाइट आपको किस लिए इंपॉर्टेंट है लाइट? व्हाई इज लाइट इंपॉर्टेंट टू यू? डू यू डू फोटोसिंथेसिस? आपको फोटोसिंथेसिस करना है क्या? दैट इज वन थिंग। हाँ, ऑफ कोर्स। सो बेसिकली जो ये है आपका क्या बोलते हैं, लाइट है। ठीक है, बेसिक है कि प्लांट्स को चाहिए होती है लाइट, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या बनाएंगे? अपना फूड बनाएंगे। ठीक है, प्लांट इटसेल्फ इज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। सिंपल है, हम भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म है ऑटोट्रॉफिक जो भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, तो हमारा भी न्यूट्रिशन का सोर्स वही है प्लांट। बट प्लांट कब सर्वाइव करेगा? जब प्लांट खुद के लिए खाना बना पाएगा। खुद के लिए खाना बनाने के लिए उसे लाइट चाहिए होती है। ठीक है, ये हो गया वन कंसेप्ट की लाइट इंपॉर्टेंट क्यों है। देन द अदर कंसेप्ट इज कॉल्ड एज फोटो पीरियड। फोटो पीरियड याद किसको याद है फोटो पीरियड? फोटो पीरियड मैंने नहीं पढ़ाया है आई गेस। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स, याद है कि नहीं? फोटो पीरियड, फोटो इज लाइट, पीरियड इज टाइम पीरियड। सो वो लाइट इंटेंसिटी कब तक आएगी, दिन में कितने लंबे टाइम तक आएगी? क्या ये शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, क्या वो लॉन्ग ड्यूरेशन होगा? डिपेंडिंग ऑन दैट डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। कि भाई ये लॉन्ग डे प्लांट है, ये शॉर्ट डे प्लांट है। वही सीजनैलिटी, भाई ये वाला प्लांट इसी सीजन में उगेगा। क्यों इस सीजन में उगेगा भाई? क्योंकि उस टाइम पे डे लॉन्ग होते हैं, तो फिर ज्यादा सनलाइट की इंटेंसिटी उसे चाहिए होती है। उसको सन की इंटेंसिटी ज्यादा टाइम तक चाहिए होती है। कुछ होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स जिनको सन की इंटेंसिटी उतनी नहीं चाहिए होती, तो दे ग्रो इन दैट पर्टिकुलर सीजन, दैट पर्टिकुलर टाइम, जब डे थोड़े शॉर्ट होते हैं, सो दैट सनलाइट की इंटेंसिटी जब उन पे आएगी वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं है। ज्यादा लंबे टाइम तुमको क्या मिले? इफ डेज आर शॉर्ट देन नाइट्स आर लॉन्गर, basic logic. So that means short day plants will require a long day
लॉन्ग नाइट, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ नो लाइट, ठीक है, तभी वो ऑप्टिमली एक्ट कर पाते हैं। तो फोटो पीरियड, अब फोटो पीरियड का पूरा कंसेप्ट किस पे डिपेंडेंट है भाई? फोटो पीरियड का पूरा कंसेप्ट लाइट पे डिपेंडेंट है। एक अगेन फोटो पीरियड किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फ्लावरिंग। कुछ प्लांट फ्लावर तभी करते हैं जब लाइट की प्रेजेंस होती है, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में ही फ्लावर करते हैं, लाइट चली जाती है तो बंद हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज योर फोटो पीरियड कंसेप्ट। तो लाइट दो चीज के लिए इंपॉर्टेंट हो गई। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको आप बोलते हैं डायर्नल एंड नॉक्टर्नल, डायर्नल एंड नॉक्टर्नल। हाँ, नॉक्टर्नल कौन हो गए? नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल मतलब आप लोग, और आप लोग वैसे नॉक्टर्नल नहीं हो, बट अब नॉक्टर्नल बन गए होगे बिकॉज ऑफ योर स्टडी। तो नॉक्टर्नल इज नथिंग बट जो इज एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, जो नाइट में एक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल जो कॉकरोचेस, दे आर नॉक्टर्नल। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो भी नॉक्टर्नल्स होते हैं। Why? Because they become active during nights only. दिन में ही एक्टिव होते हैं, रात को ही एक्टिव होते हैं, ठीक है। Then we have diurnal, diurnal मतलब यार एक्टिव ड्यूरिंग द डे, डे टाइम में एक्टिव है, ठीक है। Why sir? As in इसका रीजन इज द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, ठीक है, उसको लाइट नहीं पसंद होगी। सिंपल थिंग, आप कॉकरोच, सिंपल आइडिया है, दिन में दिख जाएगा, मार देंगे उसको आप लोग, बट रात में जब सब सो जाते हैं तो दैट पर्सन, दैट कॉकरोच कैन एंजॉय इट्स लाइफ, he can party at your house, right? That is the reason, ठीक है। So this is how, this is why this light is important, ठीक है। लाइट इन कारणों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं सॉइल पे। सॉइल इंपॉर्टेंट है कि नहीं? सॉइल इंपॉर्टेंट है कि नहीं? सॉइल इज ऑल्सो अबायोटिक फैक्टर, है ना, सॉइल भी अबायोटिक फैक्टर है। सॉइल अबायोटिक फैक्टर किस लिए है? कि सॉइल की वेराइटी, सॉइल की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के वजह से भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रो करती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू से द कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन इज prominent in this Maharashtra, your state, right? Black soil you call it, or towards the southern part, or towards the this eastern part. यहाँ पर cultivation of sugarcane is prominent. Why? Because it requires a specific kind of a sugar. Sorry, not sugar. It requires a specific kind of a soil. ठीक है? It requires a specific kind of soil जिसमें वो grow करेगा। तो मोस्टली नॉर्दर्न रीजन में उतनी अच्छी क्वालिटी वाले नहीं ग्रो करते हैं व्हाट शुगर केन। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है यार? हाउ डू यू डिस्टिंग्विश अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स? ये डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स इज अ डिफरेंट कांसेप्ट। ये आप अगर रिवाइज करना चाहो तो इसी टाइम जब आप ये पढ़ रहे होगे, जस्ट टाइप्स ऑफ सॉइल्स और उनकी प्रॉपर्टीज देख लेना कि भाई इसमें इतना इतना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसमें इतना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये सब हमने आई थिंक किया है, अगर आपने कभी ना कभी से पढ़ा ही होगा तो वो चीज आप तब कर लेना, ठीक है। वो क्योंकि इसमें लिखा नहीं हुआ था तो जबरदस्ती चैप्टर को लंबा करके क्या मिलता है, वो आपको अगर नहीं पता तो आप उसको खुद से अलग से पढ़ सकते हो, ठीक है, ओके। एक मिनट। हाँ, तो अब ये देखो सॉइल किस लिए इंपॉर्टेंट है। अब सॉइल देखो, अगर आप सॉइल की वजह से क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब आपके प्लांट्स हैं, कुछ दे आर बिकमिंग सॉइल स्पेसिफिक मतलब कि उनको वैसी कंडीशन की सॉइल मिलेगी तो ही वो वहां पर ग्रो करेंगे, ठीक है। अब मतलब सॉइल इज नॉट द ओनली रीजन, मे बी टेम्परेचर वहां पे आ जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर का ऑप्शन वहां आ जाएगा, लाइट की इंटेंसिटी वहां पर आ जाएगी, है ना, लाइट की इंटेंसिटी वहां पर आ जाएगी। जो आपके नॉर्दर्न पोल्स होते हैं वहां पर लाइट की इंटेंसिटी, सनलाइट की इंटेंसिटी भी उतनी नहीं जाती है, बिकॉज सनलाइट की इंटेंसिटी एक रीजन तक ही जाती है towards your pole, and उसके बाद there is a region on your globe, if you see the tip, दोनों साइड पे जो टिप वाला रीजन है वो एक ऐसे रीजन है जहाँ पे देर आर 24 आवर डार्कनेस, ठीक है। वैसे रीजन भी है, मतलब कोई रहता नहीं वहां पे, बट हाँ ऐसे रीजन भी हैं, ठीक है। तो सॉइल से आपको क्या ये पता करना है कि देखो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सॉइल की, कैसे कि सॉइल की कंपोजिशन क्या है। फॉर एग्जांपल सॉइल की कंपोजिशन कैसे पता चलता है कि सॉइल की कंपोजिशन कैसे होगी। कंपोजिशन मतलब सॉइल क्या है? सॉइल तो सॉइल है, और हर जगह सॉइल एक जैसी होनी चाहिए ना। सॉइल की कंपोजिशन की बात क्यों कर रहे हैं? सॉइल की कंपोजिशन चलो मुझे बताओ चेंज ही कैसे होगी? मिट्टी तो मिट्टी है, जिस रॉक से बना है वो, वेरी गुड, दैट इज द करेक्ट आंसर, कि जिस रॉक से बना है वो, राइट।
जिस रॉक से बना है वो, और रॉक इज एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। रॉक को आप रॉक क्यों बोल रहे हो, इज एन एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स। अब रॉक में ऐसा क्या हो रहा है कि वो सॉइल बन रही है, ये भी पता होगा आप लोगों को। रॉक में ऐसा क्या हो रहा है कि वो सॉइल बन रही है? वेदरिंग सुना है? वेदरिंग, वेदरिंग ऑफ रॉक, वेदरिंग, करेक्ट, वेदरिंग। सो वेदरिंग हो जाती है रॉक में। वेदरिंग बहुत टाइप की होती है, फिजियोलॉजिकल भी होती है, बायोलॉजिकल भी होती है, केमिकल भी होती है। फिजियोलॉजिकल कैसे है कि रॉक भाई कुछ मारा आपने, टूट गया वो, ठीक है, विंड की वजह से हो जाती है। विंड कट करती हुई जाती है एकदम हाई स्पीड में, तो थोड़ा बहुत फ्लेक्स उड़ाती हुई ले जाती है। बायोलॉजिकल मतलब कोई सीड अगर किसी क्रैक में गिर गया, वो सीड जैसे जैसे बड़ा होगा तो वो क्रैक वाइडन अप हो जाएगा, वो क्रैक टूट जाएगा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, और क्या बोला मैंने, एक और कुछ बोला था। फिजियोलॉजिकल, केमिकल। अब केमिकल क्या, कुछ कुछ केमिकल डिपॉजिट हो जाते हैं उसमें, डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स, वो जो रॉक को है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं बिकॉज ऑफ दोस पर्टिकुलर केमिकल्स, वो उसे डिग्रेड कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं। अब वेदरिंग, अब उससे क्या होगा कि फाइन फाइन पार्टिकल्स जाके अब सॉइल की एक लेयर बना देंगे, उसको बोलते हैं आप सॉइल, ठीक है। सॉइल की कंपोजिशन टाइप ऑफ रॉक्स पे डिपेंड करती है। फिर ग्रेन साइज, ग्रेन साइज की, ग्रेन कितना है। अब जितने बड़े ग्रेन होंगे उतना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगा। क्यों क्यों बिकॉज उसमें उस टाइम पे क्रैक्स ज्यादा होंगे, क्रैक्स ज्यादा होंगे, तो वाटर क्या करेगा, फ्लो थ्रू कर जाएगा, नीचे चला जाएगा, ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, ठीक है। तो ग्रेन साइज मैटर करता है। ग्रेन साइज एकदम छोटे हो गए तो भी तो उसमें वाटर अक्यूमुलेट उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, बट हाँ, जितना वाटर अक्यूमुलेट होगा उतना ज्यादा देर तक वो वाटर रिटेन रहेगा, ठीक है, बिकॉज एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड है सब, एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड है, तो एकदम माइन्यूट माइन्यूट जो स्पेसेस हैं उसमें वाटर अक्यूमुलेटेड है, और वाटर हैज लाइक वेरी लिमिटेड स्पेस टू मूव हियर एंड देयर, ठीक है। तो ग्रेन साइज पे वो सब डिपेंड करता है। एग्रीगेशन इज लाइक डिफरेंट। अब ये ऐसा नहीं होगा कि एक ही मिनरल से आपकी पूरी सॉइल बन जाएगी, नहीं, इट्स एन एग्रीगेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स होंगी जिससे आपकी सॉइल बनेगी, तो ये एग्रीगेशन है, एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, ठीक है। डिटरमाइन दी पर्कोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, तो ये सारी चीजें आपके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वगैरह, टाइप ऑफ सॉइल्स वगैरह डिफाइन या डिटरमाइन करती है, ठीक है। पीएच भी सॉइल का इंपॉर्टेंट है, पीएच भी सॉइल का इंपॉर्टेंट है, यूजुअली रिक्वायर्ड होता है ये 5.5 to 6.5। इज दिस एसिडिक और बेसिक? 5.5 to 6.5, इज दिस एसिडिक और बेसिक? केमिस्ट्री। क्या हुआ, इसको ये बताने के लिए भी इतना टाइम, 12th में हो? Only one person is answering, rest other, are you just enjoying the class or doing some two people? Like I got an answer from Sonali and I got an answer from Akansha. What about other people? What about Anjali? What about Megha? What about Pratiksha? What about Preeti? You guys should answer यार, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, एटलीस्ट आंसर, ये आंसर कर दो कि थोड़ा तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ चलो कुछ तो आता है ना। और अगर, ठीक है, आई होप आप लोग को आता होगा ये आंसर, डेफिनेटली दैट इज वन थिंग, बट यू आर मोर और लेस टायर्ड ऑफ टाइपिंग। बट अगर ये भी नहीं आता है तो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लियर दैट पर्टिकुलर एग्जाम, समझ रहे हो, तो डिफिकल्ट है फिर बहुत, बिकॉज ये तो कुछ भी नहीं है, दिस इज कंसेप्ट ऑफ सिक्स्थ क्लास, सिक्स्थ भी नहीं होगा, सिक्स से भी नीचे पढ़ा रहे होंगे आजकल, लेवल ही इतना बढ़ चुका है, ठीक है। इस साल का नीट पेपर हुआ, देखा किसी ने? ये वेट ही कर रहे हो अभी तक, कब आएगा आपके हाथ में? देख लेना चाहिए था, अभी तक पेपर हो चुका है। नीट का भैया, नीट का पेपर रिसेंटली हुआ है, पिछले हफ्ते ही हुआ है। गुड, देखा, जिन्होंने देखा है वेरी गुड। ट्राई टू सॉल्व देम, सॉल्व करो, लुक वेयर डू यू स्टैंड, ठीक है, सॉल्व करो, नहीं आ रहा हो तो भी करो, बट करो। सुना फिजिक्स टफ है, सुनो नहीं, करके देखो ना, तुम्हें लग रहा है कि नहीं टफ, बाकी लोगों के लिए होगा, मे बी तुम्हारे लिए नहीं हो, ठीक है। अगर तुम्हारे कंसेप्ट उतने क्लियर है तो तुम्हारे लिए टफ नहीं होगा, टफ तो देखो आना ही है ना। बहुत बच्चे देते हैं, I think this time it's 16 lakh people who have given the exam.
16 lakh. Am I right? आप लोगों में किसी ने सुना है this value is correct or not? 16 lakh. या मैंने कुछ ज्यादा बता दी? I guess 16 lakh is most there. तो 16 लाख बच्चन दिया है. सीटें कितनी है? सीटें, if I say सीटें, that means only government college, because in private colleges the fees would go up to only and only 1 CR. 1 lakh 1 lakh is too much for government colleges. नहीं है इतनी सीटें भैया, नहीं है, डिफिकल्ट है. हाँ ठीक है, होंगी 30-40 हजार, उससे ज्यादा आई डोंट थिंक. I am talking about good government colleges and not the, and I'm talking about the MBBS colleges, not the BDS or BAMS, not those course. ठीक है, बहुत कम है. सो सी द लेवल, देखो वो 16 लाख में से 16 लाख सिंसियर लोग तो है नहीं. 16 लाख में से हार्डली 10 लाख लोग होंगे जो सिंसियरली जिन्होंने प्रिपेयर किया है. ठीक है, उन 10 लाख में से कुछ 1 लाख ही होंगे जो बहुत ही हाई लेवल वाले हैं. तो वो 1 लाख को तो मिल गई सीट. बचे ये जो बीच के 6-8 लाख, तो इसमें इनमें बच जाता है कंपटीशन. सीटें कम है थोड़ी भाई, डिफिकल्ट है, अब बढ़ गए हैं. यस, a total of 41,388 government medical college seats through NEET. ठीक है, 41,000 government colleges, only 41,000. 16 lakh 41,000. मैथ्स कैलकुलेट कर लो कितना परसेंट है आप ही जानो. ठीक है, तो डिफिकल्ट है यार. आई एम नॉट ट्राइंग टू like scare you or something, but the exam is very tough, and I got messages from few of you guys कि you want to do that particular exam, so you have to work hard. उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं. अब तो नहीं है. It is now, see the time, it's time as in 6:15 वाला time नहीं, see the month, it's already 17th of September. क्या ही टाइम है आप लोगों के पास. अरे 1 ईयर नहीं लेफ्ट. पिछली बार का नीट लेट हुआ है, इस बार का नीट लेट नहीं होगा. सितंबर में नहीं होता है नीट, मई फर्स्ट वीक में ही होता है. तो मई फर्स्ट वीक में हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस. तो वो 1 साल मत कंसिडर करो. अब 1 साल के बीच में आपके 1-2 महीना ये बोर्ड एग्जाम भी खपाएंगे ना, वो भी है बीच में. कि बोर्ड एग्जाम के टाइम पे यू आप नीट लेवल की प्रिपरेशन नहीं करते बैठना, एटलीस्ट वो गलती मत करना है. दोनों जगह पे वाट लग जाएगी. नीट आएगा, नीट जब तक है टाइम, जनवरी तक करो प्रिपेयर जितना हो सकता है. जैन भी कर लो पूरा, बट फेब और मार्च में तो शुरू हो जाएंगे पेपर. एटलीस्ट मिड जैन से लेके पूरा फेब तो एटलीस्ट इसमें दो. एनसीईआरटी मतलब इसमें दो, अपने क्या बोलते हैं इसको, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए दो. क्योंकि यहाँ मार्क्स नहीं आए तो फिर तो वैसे ही रह गए. फिर तो ढंग के नॉर्मल कॉलेजेस भी नहीं मिलेंगे, है ना. बीएससी करोगे या कुछ भी करोगे, वेटनरी करोगे या फिर बायोटेक करोगे, माइक्रोबायोलॉजी करोगे. हाउ टू प्रिपेयर फॉर टर्म 1 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन. मतलब टर्म 1 मतलब, देखो आप लोगों में अभी पता क्या है इशू. अब 12th में तो यू आर एबल टू, अब 12th में तो आप लोग कर पा रहे होगे क्योंकि 12th आप रिसेंटली पढ़ रहे हो. द थिंग इज 11th की चीजें याद नहीं होगी. ठीक है, 11th की चीजें याद नहीं होगी. अब 11th की चीजें कैसे याद करोगे, वो डिफिकल्ट टास्क है. मतलब 11th की स्टडी को टाइम कब दोगे, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क. 12th में तो सब दे दोगे. 12th में तो आप रिसेंटली पढ़ रहे हो. देखो यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, खुद से भी पढ़ रहे होगे आप, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, खुद से भी पढ़ रहे हो, स्कूल भी पढ़ा रहे हैं. बट यहाँ पर तीनों में से कोई भी आपको 11th का कुछ ही नहीं पढ़ा रहा है. तो वो तीनों में से एक ही बंदा है, एक ही लोग है जो कर सकता है 11th की पढ़ाई. वन इज मी जो आपको 12th पढ़ा रहा है, वन इज योर टीचर जो आपको 12th पढ़ा रहा है, एंड वन इज यू योरसेल्फ हु इज स्टडीइंग फॉर 12th. But out of these three, only one person can teach you 11th. Now, who can be that person? Yes, you yourself. ठीक है, not me and not your teacher, but you yourself can teach yourself class 11th. So this is the time to revise that particular thing.
एंड नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली बायो, फिजिक्स भी 12th का भी आने 11th का भी आने वाला है, केमिस्ट्री भी 11th का ही आने वाला है, 12th का भी आने वाला है, बट समझ रहे हो ना। सो यहाँ लैग कर रहे हो आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, इफ यू आर टारगेटिंग दैट पर्टिकुलर एग्जाम। ठीक है, सो देख लो कहाँ स्टैंड कर रहे हो, करो थोड़ी मेहनत की, रिक्वायरमेंट तो थोड़ी तो नहीं है, रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा है, बट कोई बात नहीं, एक साल में नहीं हुआ तो एक साल ड्रॉप ले लेना, बट ड्रॉप सिर्फ वही लोग लेना जो सीरियस है। ठीक है, जो एटलीस्ट अभी पेपर दे रहे हो, आप अभी अगर पेपर दे रहे हो 720 का होता है गेस, 720 में से आज की डेट में भी अगर आप पेपर दे रहे हो एटलीस्ट हाफ तो मार्क्स आए आपको, अगर वो हाफ भी नहीं आ रहे ना तो ड्रॉप मत लेना भैया, तो सिंपल लॉजिक है ये, इफ यू आर नॉट एबल टू स्कोर इवन हाफ ना तो मत लेना, तो ड्रॉप मतलब हाफ भी चलो मत करो, आप थोड़ा और कम कर दो, अभी के लिए अगर आप 40% भी ले आ रहे हो, 40% भी ले आ रहे हो 720 में से, तो भी चलो ठीक है, तो भी यू कैन ट्राई एंड टेकिंग अ ड्रॉप। बट अभी अगर आपके 100 मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं 720 में से, 100 चलो आ ही जाते हैं, बायो के क्वेश्चन इजी होते हैं, बट अभी आपको अगर 150-200 भी नहीं आ रहे हैं ना तो डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर मत लो, देखो फिर लॉस ऑफ रिसोर्सेज हो जाएंगे बहुत सारे आपके। ठीक है, फिर तो सबसे सिंपल अंडरस्टैंडिंग, सिंपल में कुछ ना कुछ अपने बढ़िया वाले कोर्स उठा लो, लाइक बायोटेक बहुत अच्छा फील्ड चल रहा है, माइक्रोबायोलॉजी बहुत अच्छा फील्ड चल रहा है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत अच्छा फील्ड चल रहा है। ठीक है, ये सारे प्लेन में मत घुसना, प्लेन प्लेन साइंस में मत जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं, इनमें मजा नहीं है, मजा है मतलब पढ़ने में, यू कैन एंजॉय योर कॉलेज लाइफ, बट देन यू डोंट हैव एनी जॉब्स। ठीक है, तो वो आप फिर रह जाओगे, एंड इफ यू हैव थिंक फॉर लाइक इफ यू वांट टू ट्राई फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, फिर तो कोई भी डिग्री मैटर नहीं करती है आपको। ठीक है, फिर तो कोई भी डिग्री मैटर नहीं करती है, सो कोई भी नॉर्मल डिग्री ले लो, बीएससी की ले लो, बीए की ले लो, बीबीए ले लो, बीकॉम ले लो, और उस जो during from the starting from the time of your college itself you start preparing for your जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स which you want to give, right? बैंकिंग का देना है, रेलवे का देना है, यूपीएससी देना है, एमपीएससी देना है, एसएससी देना है, सीजीएल देना है, जोन से भी देने हैं आपको, तो प्रिपेयर कर लो। बट आई डेफिनेटली नो, मैं भी जब 12th में था आई डेंट हैव एनी आइडिया अबाउट जो नाम मैंने अभी लिए हैं आपके सामने, आई होप आपको भी नहीं होंगे, बट नाउ पीपल आर स्मार्ट, तो आप लोगों को शायद अवेयर होंगे आप लोग ये सब एग्जाम्स के बारे में। सो पीपल एट योर एज, लाइक व्हेन आई वाज योर एज, वी हैड नो क्लू अबाउट ऑल दीज एग्जाम्स एंड हाउ टू गो थ्रू दीज थिंग्स, बट अगर उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग अब तब होती, तो we would have like around 4 years extra to study the same thing जो we are studying now for the competitive exam I'm talking about, right? तो ये चीज है, if you want to do that, कोई भी नॉर्मल बीएससी कोर्स में एडमिशन ले लो, ठीक है, और अपना 3 साल होंगे, कॉलेज की भी पढ़ाई करते रहो, कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करते रहो, और साथ ही साथ गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते रहो। बढ़िया, जिसका मैथ्स अच्छा है, एप्टीट्यूड अच्छा है, अच्छे की बात भी नहीं है, नॉर्मल भी एप्टीट्यूड होगा तो थोड़ा बहुत पढ़ना है, थोड़ा पढ़ के एग्जाम्स क्लियर करो। ठीक है, तो ऑप्शंस बहुत हैं, बट आई विल स्टिल रिकमेंड एक चीज जरूर करना, अच्छा आज की डेट में आप लोग नहीं पूछ रहे हो, जो लोग पूछ रहे हैं वेल एंड गुड ना, जो लोग पूछ रहे हैं इन लोगों में से दे आर वेल अवेयर कि हाँ दे आर आस्किंग मी क्वेश्चंस, सो दैट इज वन थिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट द रेस्ट जो नहीं पूछ रहे हैं, बिफोर एटलीस्ट टेकिंग द एडमिशन, इन विच कोर्स आर यू टेकिंग, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज टू मी, yes sir we are trying and getting into this college for this particular course, एटलीस्ट वो मैसेज कर देना। आई होप whatever reply I will give, that will be the best reply for your 3 year, for your entire life, I guess, कि वो लेना है कि नहीं लेना है, कि वो करना है कि नहीं करना है, सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। ठीक है, ये चीज एटलीस्ट आप लोगों को उस टाइम पे कर लेना। ठीक है, irrespective of where I am after 1 year, when you get 1 year or 2 year or 3 year, जब भी, ठीक है, तो that thing you should definitely डू, ओके, वो जरूर पूछ लेना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सॉइल हम कर रहे थे, सॉइल की जो ऑप्टिमम पीएच, जो बेसिक पीएच होती है, बेसिक नहीं सॉरी एसिडिक पीएच होती है 5.5 to 6.5 ये, ठीक है, 7 के ऊपर फिर वो बेसिक शुरू हो जाती है, तो स्लाइटली एसिडिक ही सॉइल चाहिए होता है हमें,
फिर मिनरल्स कैसे आते हैं सॉइल के अंदर, हमने देखा एक होता है पीडोजेनेसिस. पीडोजेनेसिस नथिंग बट अ साइंटिफिक नेम, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड, ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज अ फिजिकल प्रोसेस कि वेदरिंग कैसे होती है. बट पीडोजेनेसिस इज लाइक द साइंटिफिक टर्म कि भाई सॉइल, रॉक से सॉइल कैसे बनती है. फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स वगैरह होते हैं. देन वन प्रोसेस इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन. ह्यूमिफिकेशन कुछ नहीं होता, ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होके जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा देता है. ऑर्गेनिक मैटर हेल्प करता है. जो ऑर्गेनिक मैटर कैसे बनता है, जो भी अब वेस्ट सॉइल के अंदर होता है वो डिकम्पोज होने लगता है. वो जैसे जैसे डिकम्पोज होता है तो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होने लगता है. एंड ऑर्गेनिक मैटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स. ठीक है, तो इसको बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन. तो इससे एक सॉइल एनरिच बनती है, सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव होती है. पीटर, ठीक है. सो नाउ वी हैव रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, बट ये आई थिंक हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, बिकॉज नाउ द टाइम लेफ्ट इज वेरी लेस. तो फिर वो बीच में छोड़ के फायदा नहीं है. ठीक है, सो विल टेक दैट इन नेक्स्ट क्लास ओनली, द रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर. मतलब ये अबायोटिक फैक्टर तो हमने देख लिया. अब ऑर्गेनिजम्स इन अबायोटिक फैक्टर पे रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, हाउ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू दिस अबायोटिक फैक्टर. ठीक है, फॉर एग्जांपल कि भाई एक कैक्टस प्लांट या फिर ओपुंशिया, फॉर एग्जांपल इट्स अ कैक्टा ओनली, वो कैसे सरवाइव कर पाता है डेजर्टिक क्लाइमेट्स में. पोलर बियर कैसे सरवाइव कर पाता है उतने हाई टेम्परेचर में. ठीक है, वो सारी चीजें. अडेप्टेशंस क्या है, रिस्पॉन्स क्या आता है. ठीक है, कई लोग माइग्रेशन माइग्रेशन कर लेते हैं. लोग मतलब बर्ड्स वगैरह माइग्रेशन कर लेती है. माइग्रेशन क्या होता है, कुछ नहीं, टेम्परेली एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले जाना, फिर दूसरी जगह से वापस वही अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाना. दैट इज नथिंग बट योर माइग्रेशन. तो आपने क्या किया, आपने रिस्पॉन्ड किया किसको, अबायोटिक फैक्टर को. अबायोटिक फैक्टर क्या, टेम्परेचर. टेम्परेचर मान लो बढ़ गया, बहुत गर्मी हो गई, अरे भाई गर्मी हो गई चलो कहीं चलते हैं, तो आप माइग्रेट करके कहीं और, वापस वहां पे ठंडी आ गई, चलो भाई वापस चलते हैं अपने घर. तो ये माइग्रेशन. तो ये क्या आपका रिस्पॉन्स था, आपका रिस्पॉन्स था अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट द अबायोटिक फैक्टर, कि आप जो गर्मी आई तो आप चले गए, और फिर ठंड जब वापस आए तो वापस आ गए. दैट इज योर माइग्रेशन. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर वीकेंड, गुड बाय.